یہ گیڑا باڑی میں دودھ لا کر کے بیچتا تھا. 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی ملاتا تھا اور قسم کھا کر کے کہتا تھا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا ہوں, پانی میں دودھ ملاتا ہوں. 1 کلو دودھ 10 کلو پانی. 99 دن چور کے, ایک دن کوتوال کا. دودھ بیچ کر کے جا رہا تھا, بٹوا میں پیسہ تھا, سائیکل سے جا رہا تھا. پیشاب کی حاجت ہوئی تو پاکڑ کے درخت کے نیچے سائیکل لگایا, بٹوا رکھا. حاجت کے لیے جیسے گیا, اوپر بندر بیٹھا ہوا تھا, نیچے آ کر کے بٹوا لے گئے. جب واپس آیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب. تو اس نے اوپر جیسے ہی سر اٹھایا تو دیکھا کہ بندر بٹوا سے پیسہ نکال کر کے دیکھ رہا کہ اصلی ہے کہ جعلی ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ مہاراج پیسہ دے دو, پوری محنت کا پیسہ ہے, رات دن کی محنت کا پیسہ ہے, واپس کر دو, کیلا کھلائیں گے, وعدہ ہے. تو بندر کی توجہ جیسے ہی بٹی, اس کے ہاتھ سے ایک سکہ چھوٹ کر کے پانی میں گرا, ٹبھاک. اس کو مزہ آیا کہ باپ رے, ڈی جے کی آواز کتنی شاندار, کس کی شادی ہو رہی ہے. اس نے دوسرا سکہ نکالا, پھر ڈالا, ٹبھاک, مزہ آ گیا. اس نے دیکھا کہ بندر تو کھیل تماشے میں لگ گیا, تو پورا میرا بٹوا خالی کر دے گا. اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا مہاراج رحم کرو, میری بیوی پر, میرے بچے پر رحم کرو, بھوکے ہیں, یہ پیسہ لے کر کے جا رہا ہوں ان کے لیے. تو ایک سکہ ادھر پھینکے, ایک سکہ پانی میں ڈالے, ایک سکہ ادھر پھینکے, ایک سکہ پانی میں ڈالے. یہ کہا کہ مہاراج سمجھ میں آ گیا, جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہو گیا, جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا. امریکہ کا جارج برناٹی شاہ, وہ بولا اسلام بہت اچھا مذہب ہے, مسلمان بہت برے ہیں. لوگوں نے کہا کیا مطلب ہوا؟ ایک طرف تم تعریف کرتے ہو, دوسری طرف تم مسلمان کو برا کہتے ہو, معاملہ کیا ہے؟ اس نے سمجھایا اسلام سب سے اچھا مذہب ہے, مسلمان سب سے برے ہیں. اسلام سب سے اچھا مذہب ہے, مسلمان سب سے برے ہیں. قرآن جیسی کتاب مسلمان کو ملی, لیکن قرآن سے دور, قرآن پر عمل مسلمان کا نہیں. اس لیے اسلام سب سے اچھا مذہب ہے, مسلمان سب سے بری قوم ہے. دوسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں. اس ہندوستان میں امبیڈکر صاحب ارادہ ظاہر کیے مجھے اسلام قبول کرنا ہے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا. لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ آ گئے, کہا کہ حضور کلمہ دونوں ہاتھ سے پیش کرتا ہوں, آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیے. امبیڈکر صاحب نے کہا کہ اسلام تو بہت اچھا ہے, میں اسلام کا احترام کرتا ہوں, آپ بھی بہت اچھے عالم ہیں, میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں, لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں بنوں گا. اب پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. ابھی تک تو ارادہ تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے, اب اچانک ارادہ بدل گیا. اب کہتے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے, آپ کا احترام کرتا ہوں, اسلام کا احترام کرتا ہوں, کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا. پوچھا گیا کہ بات کیا ہے, تو کہا کہ مولانا کپڑے سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں, شکل سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں, جسم سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں, لیکن ہندوستان میں 80% مسلمان, مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا. اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. پادری ایک مسلمان جوان سے بولا کہ تم بڑے ہو یا تمہاری داڑھی بڑی ہے؟ بولا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں, میں پہلے پیدا ہوا, داڑھی بعد میں پیدا ہوئی, تو میں داڑھی سے بڑا ہوں, داڑھی مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ کہ یار عجیب بات ہے, 20 سال پہلے جب تم میرے پاس آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی, 20 سال کے بعد جب آئے ہو تو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی. 20 سال پہلے میرے پاس آئے تو داڑھی کالی تھی, 20 سال کے بعد تمہاری داڑھی سفید ہو گئی, 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی, لیکن تم 20 سال سے مسلمان ہو, تم نہیں بدلے, افسوس تم پر ہے, تمہاری داڑھی پر نہیں ہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان بو, ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود, ہم یہ کہتے ہیں کہ وز میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنو
बसारा तो तमद्दुन में हनूत, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो, ये मुसलमान हैं। आप लोग हाथ उठा करके वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कितना मुश्किल काम है आपको पता है? जरा पूछ करके देखिएगा कितना मुश्किल काम है। तीसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से, आप जैसा भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं जब स्टार्ट कर रहा था जलसे को अपना, तो उस वक्त मेरा मूड भी नहीं बन रहा था, और आपकी पेशानी को मैं पढ़ करके देख रहा था कि आप भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह को अच्छा ही करना था कि ब्रेक लग गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है डिस्क ब्रेक नहीं लगा। तीसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं। जब हाथ में खुजली होती है, आंख फड़फड़ाती है, तो हम कहां पहुंचते हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब हाथ में खुजली होगी तो कहेंगे माल आ रहा है, ससुर ने कमा करके रखा है। ये जो हाथ की खुजली है, ये खून मीठा होने की वजह से है। जब आपका खून मीठा होगा तो हाथ में खुजली होगी, इसकी वजह से माल नहीं आता, माल कमाना पड़ता। जब आंख फड़फड़ाती है तो क्या कहते हैं कि किसी दुश्मन का सामना होने वाला है। ये जो आंख फड़फड़ाती है, इसकी वजह से दुश्मन का कोई सामना नहीं होता, बल्कि बलगम जब खराब होता है तो आंख फड़फड़ाने लगती है। इसी तरह कभी कभी खाते हुए जब हिचकी आती है तो लोग कहते हैं कि तुम्हें कोई याद कर रहा है। ये तो खुदा को जुमा में याद कर रहा है, रमजान में याद कर रहा है, इसको कौन याद करेगा? असल में सही से खाना खाया नहीं गया, सही से पानी पिया नहीं गया, इसलिए हिचकी आ रही। और एक खास बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जब छप्पर पर कौवा बोलेगा तो घर की औरत कहेगी पूरब की तरफ से बोल रहा है, इसका मतलब है दामाद आ रहा है, मुर्गे में चूना लगाए। बताइए, गेड़ाबारी बाजार में 1000 कौवे बोलते हैं, कितने दामाद आ रहे हैं? आना मुकद्दर से है, जाना मुकद्दर से है। और एक खास बात जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, रफ्तार से चल रहा था, 80 की रफ्तार से चल रहा था हाईवे पे मोटरसाइकिल से, बिल्ली ने रास्ता काटा, डिस्क ब्रेक मारा, 20 बार इधर थूक रहा है, 20 बार उधर थूक रहा है। उससे पूछिए कि भाई डिस्क ब्रेक क्यों मार दी, बिल्ली को रास्ता काटते हुए डिस्क ब्रेक क्यों मारा? तो कहेगा कि हादसा होगा, बला आने वाली है। लिखने वाले ने लिखा कि हादसा होगा अपने पाप की वजह से, और हादसा टलता है अपने पुण्य की वजह से। अपनी नेकी से हादसा टल जाता है, सदका की वजह से हादसा टल जाता है, और हादसा और मुसीबत का सामना होता अपने गुनाह की वजह से। कसूर अपना है, इल्जाम बिल्ली पर डाल रहा है। एक खास बात और सुना रहा हूं। 4 आदमी बैठे हुए थे, चर्चा हो रहा था किसी का, अचानक वही आदमी आ गया जिसका चर्चा हो रहा था। तो क्या कहते हैं कि तुम्हारी उम्र बड़ी लंबी होगी, अभी तुम्हारा चर्चा हो रहा था। अगर ऐसा होता, उम्र लंबी होती, चर्चा होता, तो बूढ़ों का मसला ही हल हो जाता। 4 आदमी पहले से बैठा करके रखते और बाद में आ जाते, गिद्धे की उम्र हो जाती, मरने का नाम ही नहीं लेते। और एक खास बात और भी है, जब रात में कुत्ता बोलेगा, रोएगा, तो क्या कहेंगे? किसी चौधरी का विकेट गिरने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, कुत्ता बला को देखता है और आगाह करता है कि जब बला तुम पर आएगी तो हम पर भी आएगी, खबरदार हो जाओ। एक मिसाल, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं देख रहा था कि यहाँ मैं बयान कर रहा हूँ और पैसा आ रहा है, माशाअल्लाह। ये मकई का पैसा है और बिल्कुल चमक रहा है, देखिए माशाअल्लाह। और मकई, इस बार मकई की फसल है, दाम भी अच्छा है, और आपकी किस्मत है कि अल्लाह ने आपकी मेहनत को ज़ाय नहीं किया और आपकी मेहनत रंग लाई। तो वादा कीजिए, इस मकई से गरीबों की खिदमत करेंगे, यतीमों की मदद करेंगे, दूसरे की मदद से हाथ नहीं खींचेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक कंजर था, कंजूस था, बखील था, एक फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था।
जब मरने लगा तो लोगों ने कहा अरे जीते जी तो एक पैसा किसी को नहीं दिया, अब मर रहे हो कम से कम सदका खैरात तो कर दो। तो कहता है दे तो रहा हूं, जान तो दे रहा हूं, अब क्या दूंगा, बहुत कुछ दे दिया। क्या मिला सैयाद मेरे आशियां को तोड़ के, किस कदर मेहनत रखा था ये तिनके जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पोत 1.25 लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। तेजी के साथ निकल गया, 1/3 पैगाम मेरे हिस्से का निकल चुका। बड़ी तबीयत के साथ आपने सुना। मैं आपके जवान बेटों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह दीन दुनिया चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। चौथा पैगाम, इतनी दूर मुझे सफर के लिए जाना है, आपकी दुआओं के सदके में आफत और बलाओं से हिफाजत होगी। इतनी दूर का मेरा सफर है, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, पप्पू यादव जी की तरह अगर मुझे टाइम मिलता तो मैं आपको 3 मिनट में एक पैगाम सुना करके जाता जो अभी मैं सुना रहा हूं। इसमें मेरा कम, आपका ज्यादा फायदा है। और मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी आपको देता हूं, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। ये 2025 चल रहा है, तजर्बा कर लीजिए। अगर तजर्बा झूठ हो जाए तो मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं आप। इतनी पक्की बात कर रहा हूं, आपके हाथ में भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। इसकी गारंटी मसनदे रसूल पर दे रहा हूं। लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। इसको डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। पहला काम, हलाल कमाइए। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। और दूसरा काम, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। जेब को देखना है, दूसरे को देखना नहीं है। दूसरे को दिखाकर, देख करके पैसे को उड़ाना नहीं है, बहाना नहीं है। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मसनद रसूल पर गारंटी देता हूं, हाथ में भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। आप जब लुकमा उठाते हैं थाली से, कितना छोटा होता है, देख लीजिए, ये साइज है। और जब हलक के नीचे उतरता है तो साइज और छोटा हो जाता है। एक लुकमा उठाया आपने, भूख नहीं मिटी, फिर दूसरे लुकमे को आपने उठाया, उसका साइज देखिए कितना छोटा है। फिर उसके बाद हलक के नीचे उतारा और छोटा हो गया, इतना छोटा साइज है। 2 ही लुकमा सिर्फ हराम है, कितना छोटा। लेकिन जानते हैं इसकी नहुसत, 40 दिनों तक आपकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी, सर के ऊपर, आसमान के ऊपर नहीं जाएगी। अल्लाह। जब 2 लुकमे का ये हाल है तो ये गोदाम भरने का, पेट भरने का कितना बड़ा नुकसान होगा। हराम से पेट नहीं भरना है। बंधन लोन हमारी बीवी उठाएगी, LIC की किस्त हम जमा करेंगे, हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। रांची जाने के लिए तैयार हो जाइए हमारे साथ। हम हाथ हैं और हाथ के साथ एक फूल होना चाहिए। ये देखिए, ये दौर है रुपया का, अभी पैसा का दौर नहीं है। अभी 150 साल पहले पैसा का दौर चलता था, अब ये रुपया का दौर है।
2 पैसा आपने किसी का मार लिया, सिर्फ 2 पैसा, 200 भी नहीं, 100 भी नहीं, सिर्फ 2 रुपए, 2 रुपया भी नहीं, 2 पैसा आपने अगर किसी का मारा, आखिरत में 700 मकबूल नमाजें आपके नामे अमाल से छीन ली जाएंगी। जब 2 पैसे का ये हाल है, जब 2 पैसे का ये हाल है तो 2000 का क्या हाल होगा, 200 का क्या क्या हाल होगा। एक कटिहार रेलवे स्टेशन में जेब काटता था और वहां से पैसा लूट करके अपने गुरु को ला करके देता था, लूट करके लाता था, कूट करके खाता था। रोज 2000 रुपये, रोज 2 लाख रुपए लूट करके लाया, कूट करके खाया। एक दिन सिर्फ 2 रुपए ला करके अपने गुरु को दिया। गुरु ने सर पर हाथ रख करके पूछा, अरे आज इतना कम, सिर्फ 2 रुपए। उसने कहा कि गुरु बहुत मोटा माल हाथ आया था, वापिस कर दिया। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है, लाते लूट करके खाते, बैठ करके खाते, लूट करके लाते, वापिस क्यों कर दिया। आपके दिल तक इस मिसाल को पहुंचा रहा हूं। उसने कहा कि जिसकी जेब काटी थी वो अंग्रेज था, बहुत मोटा माल हाथ आया था, इतना पैसा था कि 17 नस्ल अगर बैठ करके खाती तब भी नहीं घटता, इतना मोटा माल था। लेकिन वापिस कर दिया, लेकिन वापिस कर दिया, वापिस कर दिया। पूछा क्यों? कहा अंग्रेज का पैसा हाथ मारा, जब लेकर के चला ख्याल आया अगर वापिस नहीं किया क़यामत में पहुंचा। अंग्रेज हजरत ईसा का उम्मती है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। अगर मैंने ये पैसा लूट लिया, वापिस नहीं किया, तो हजरत ईसा शिकायत करेंगे हमारे नबी से कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काट लिया, मेरे नबी का सर झुक जाएगा। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए दुनिया की दौलत पर लात मार दी, वापिस कर दिया, घर लेकर के नहीं आए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। ये क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापुनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, दुनिया है सराए। आता है आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। तो इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे, रह जाएगा बस नाम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, हर तरफ से हाथ उठ रहा है। अब बताइए इन लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहिए कि नहीं? चौथा पैगाम जवानों के हवाले से, यहां से लेकर वहां तक मैंने कहा था कि पिंडाल इतना बड़ा है, इंशाल्लाह मजमा उससे बड़ा होगा, और लोग बैठ करके भी सुनेंगे, कुर्सी पर भी सुनेंगे, खड़े खड़े भी सुनेंगे। कुर्बान जाइए, कुर्सी पर बैठे लोग वो तो और सुकून से सुन रहे हैं, बैठने वाले सुकून से सुन रहे हैं, जो खड़े हैं और ज़्यादा सुकून से सुन रहे हैं। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार। अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारा जवान समाज में दारू क्यों पी रहा है? 3 वजह से। आपके घर में अगर कोई दारू पी रहा है, आप समझा रहे हैं, समझ नहीं रहा है,
3 वजह से दारू पी रहा है। दारू क्यों पी रहा है? 5 से 7 मिनट की मेरे तकरीर बाकी रह गई है। मैं आपकी खिदमत में आपके जवानों के हवाले से पैगाम देना चाह रहा हूं। हमारे जवान मुल्क की तरक्की का सामान है। जवान को तरक्की होगी, मुल्क तरक्की होगा। हिंदुस्तान के आईन में एक दफ़ा है, उसका नाम है 47, दफ़ा 47। हिंदुस्तान के दस्तूर में जो हमारा मुल्क जिस कानून से चलता है आज़ादी के बाद से, उसके दस्तूर की दफ़ा 47 में लिखा हुआ है, महात्मा गांधी जी ने इस दफ़ा को लिखाया था, पूरे मुल्क में शराब को बंद होना चाहिए। पूरे मुल्क में शराब को बंद होना चाहिए। मैं कुरान के हवाले से बाद में बताऊंगा। दस्तूर की दफ़ा 47 के हवाले से आपको बता रहा हूं। महात्मा गांधी जी ने दस्तूर में लिखाया, दफ़ा 47 में लिखा हुआ है, पूरे मुल्क में शराब को बंद होना चाहिए। सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार ने इस मामले में हमारा सर ऊंचा कर दिया। उत्तर प्रदेश में जाओ, दारू का सैलाब है। झारखंड में जाओ, दारू का सैलाब है। बंगाल जाओ, दारू का सैलाब है। सिर्फ वाहिद बिहार है जिसमें दारू पर लाइसेंस नहीं मिलता। इस बिहार ने महात्मा गांधी जी का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। महात्मा गांधी जी से पूछा गया कि आप दारू को पूरे मुल्क में क्यों बंद करना चाहते हैं? तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर दारू जारी रहेगी, जवान दारू के रौं में बह जाएगा। जब जवान बह जाएगा, मुल्क पीछे होगा, कौम पीछे होगी। जवान आगे होगा, मुल्क आगे होगा, कौम आगे होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा। कच्चा अंडा आप लीजिए, उसको तोड़िए और शराब के गिलास में डाल दीजिए। शराब के गिलास में कच्चा अंडा तोड़ करके डालिए, वो ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। आप गौर कीजिए कि शराब में तो पानी है, पानी में अंडा टाइट कैसे हो गया? अंडा पानी में कैसे पक गया? शराब की बोतल गिलास में डालकर कच्चे अंडे को तोड़ करके आप देखिए, अंडा पक जाता है। पता चला जिस तरह चूल्हे में आग है, उसी तरह शराब में आग है। जब हलक के नीचे शराब आएगी तो अतड़ी को उसी तरह गला कर रख दे। दारू पीता नहीं है, दारू पीने वाले के साथ बैठता है। शराब पीता नहीं है, शराब पीने वाले के साथ बैठता है। बाप ने मना किया, बेटा दारू पीने वाले के साथ मत बैठो, खराब हो जाओगे। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को समझ में आ गया, जोश है होश नहीं है। बाप ने कहा कि बेटा जाओ घेड़ा बाड़ी जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। एक पेटी सेब खरीद करके बाप के पास बेटा लेकर के आया तो बाप ने कहा कि बेटा अब पेटी खोलो, कोई सेब सड़ा हुआ तो नहीं है। तो बेटे ने जब चेक किया तो एक सेब सड़ा हुआ था। बेटा जब पेटी से उसको निकाल करके फेंकने लगा तो बाप ने कहा कि बेटा वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है। पेटी को बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया, पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे कि वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। एक खराब सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़े हैं, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जा रही है। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे हैं उन
ہم کو روٹی کباب نے مارا، ہم کو روٹی۔ آخری پیغام ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے، کتنا خوبصورت اسٹیج ہے، آپ دیکھ لیجئے اس اسٹیج پر کتنی دور سے ہمارے مہمان خصوصی اور کتنے سکون سے سناٹے میں اور کتنی اطمینانی اپنے وقت، کتنی عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ ہم لوگوں کو عزت دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو عزت دے رہے ہیں۔ عزت دینے کے لیے دلی سے اتنی دور سے آئے، بوڑھے آدمی، کمزور آدمی، لیکن ہمارے حوصلے نے ان کو جوان کر دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو امن میں رکھے، چین میں رکھے، سکون میں رکھے۔ بھائی چارہ کے حوالے سے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اندر سے دشمن، اوپر سے دوست بنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پورا دھیان مکئی پر ہے، تھریسر پر ہے۔ یہاں جلسہ میں کم ہے، تھریسر پر سیدھا دماغ چلا گیا ہے۔ خیر، بڑا خوبصورت پیغام تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ کینچی دیکھ رہے ہیں، کینچی، کینچی سے کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ ایک آدمی خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کینچی لے کر کے آیا۔ کینچی کہا حضور یہ میرا گفٹ ہے، میرا تحفہ ہے، قبول کر لیجئے، کینچی ہے۔ کہا استغفر اللہ، مجھ کو کینچی قبول نہیں ہے، سوئی دے دو، سوئی جس سے کپڑا سلا جاتا ہے، سوئی دے دو۔ کینچی قبول نہیں کروں گا، کینچی واپس لے جاؤ۔ کینچی کا کام کاٹنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے۔ کینچی کا کام توڑنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے۔ میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ ہندو مسلمان سے مہاتما گاندھی جی خطاب کر رہے تھے۔ ادھر ہندو حضرات بیٹھے ہوئے تھے، ادھر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے۔ ہندوؤں سے کہا کہ میں نے ہندو سے ہا کو نکالا، مسلمان سے کہا کہ میں نے مسلمان سے میم کو نکالا۔ ہندو سے ہا کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا۔ پھر میں نے کیا کیا؟ ہا کو میم سے ملایا۔ جب ہندو کے ہا کو مسلمان کے میم سے ملایا تو ہم ہو گیا کہ ہندو مسلمان ہم دونوں کے دونوں ہندوستانی ہیں، یہ ملک دونوں کا ہے، ہمارا وطن ایک ہے، ہم ہندوستانی ہیں۔ ہندو اپنی جگہ، مسلمان اپنی جگہ۔ ہندو سے ہاں کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، ہاں کو میم سے ملایا، ہم ہو گئے، ہم دونوں کے دونوں اس ہندوستان میں ہندوستانی ہیں۔ سنت کبیر نگر اتر پردیش میں ہے، سنت کبیر نگر اتر پردیش میں ہے۔ سنت کبیر نگر ضلع ہے، اتر پردیش میں ہے۔ یہ ضلع سنت کبیر داس صوفی سنت کے نام سے ضلع ہے۔ یہ کبیر داس ہندو مسلمان کو خطاب کر رہے تھے۔ مسلمان سے کہا کھڑے ہو جاؤ، ہندوؤں سے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ ہندو سے پوچھا کہ تم مانتے ہو یہ دنیا جانے والی ہے؟ ہندو نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ ہاں یہ دنیا جانے والی ہے۔ مسلمان سے کہا کہ تم مانتے ہو کہ یہ دنیا جانے والی ہے؟ مسلمان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کل من علیہا فان، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اب کبیر داس نے ہندو مسلمان سے کہا یاد رکھو، جب ہندو مانتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، مسلمان مانتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، تو جو چیز جانے والی ہوتی اس پر کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ جب تمہیں بھی پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، جب اسے بھی پتا ہے کہ ہندوستان جانے والا ہے، تو ہندوستان پر ہندو مسلمان کا جھگڑا کیسا؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے محبت سے جئیں گے، محبت سے مریں گے انشاءاللہ۔ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے، جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں پڑتی،
महासागर बनाने में, मगर एहसान सब का है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वज़ू करूँ अजमेर में, वज़ू करूँ अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव सभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक आदमी दुआ कर रहा है मालिक से। अभी पप्पू यादव जी आए थे, वो भी कह रहे थे कि ईश्वर से ताल्लुक रखो, तुम्हारा दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वो दुआ कर रहा था ईश्वर से, मालिक से। बगल का एक आदमी बोला कि किससे दुआ मांग रहे हो? कहा खुदा से। कहा खुदा है? तो इस अल्लाह के बंदे ने कहा अगर नहीं है तो ये दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है? तो उस दुश्मने खुदा ने कहा मैग्नेट से चल रहा, खुदा से नहीं चल रहा। हाथ में लाठी थी, 2-4 लाठी सर पर मारी, सर फट गया। उसने कहा अरे ये क्या किया? कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैग्नेट से हुआ है। अब उसको समझ में आ गया कि खुदा की लाठी कैसे चलती है। आमद यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। या रब मेरे कलम को तो वो रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शूर व फिक्र में तेरा ही है जमाल, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ रब्बे जुल जलाल। बड़ा खूबसूरत पैगाम तेजी के साथ निकल रहा है। जुमा के दिन आप देखेंगे हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहा है कि फुटबॉल खेल रहा है? भीख भी मांग रहा है, कटोरा भी उछाल रहा है, भीख भी मांग रहा है, सर भी उछाल रहा है। अरे भीख मांगो तो शर्म से मांगो, सर झुका करके मांगो। तो उसने कहा किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर, खानदानी पेशा। लेकिन जब भीख देने वाला आया, उसने सरगाड़ करके भीख दिया। इसने हाथ पकड़ करके कहा कि भाई साहब आप तो भीख देने वाले हो, शरीफ आदमी हो, आप सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? आपको तो सर उठा करके भीख देना चाहिए। भीख मैं मांग रहा हूं, बेशरम हूं।
मुझे सर झुका करके भीख मांगना चाहिए। उसने कितनी प्यारी बात कही है, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैं लास्ट तक आपका जनाजा पढ़ा ही दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। उस आदमी ने कहा, यार तुम्हारे लिए अल्लाह ने कल ही मेरी जेब में पैसा डाल दिया और तुमको भीख का कटोरा लेकर के आज यहां खड़ा कर दिया। मेरा रास्ता फलका की तरफ निकल रहा था, मूसापुर की तरफ भेज दिया। उसी का दिया हुआ पैसा, उसी के नाम से, उसी की तौफीक से मैं तुमको दे रहा हूं। काम तो वो बना रहा है, नाम मेरा हो रहा था, इसलिए सर गाड़ करके भीख दिया, सर उठा करके भीख नहीं दिया। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन। दाम गिरा से देवत हो नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे। यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। पूरी ताकत लगा करके मैं आपको बयान सुना रहा हूं। ये माइक इतना बूढ़ा है, ये हमको बूढ़ा कर देगा। मैं शुरू से कह रहा हूं, अरे आवाज बढ़ाओ यार, आवाज बढ़ाओ। तुम्हारे माइक में मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ती है। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से 2 मिनट का पैगाम आपके सर से गुजार रहा हूं। यहां से लेकर के वो आप लोग सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इल्म की दौलत है सीला ज़वाल, जिसके आगे गंज कारो पाईमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज़, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना। इल्म से रंज दूर होता है, दिल को हासिल शूर होता है, दिल को हासिल। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को पर चमकाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा एक चलते चलाते एक सवाल था। हम जैसे बैठे हैं आप उसी तरह बैठे हुए, हाथ पांव नीचे है, दिल बीच में है, दिमाग ऊपर है। हम जैसे बैठे हैं वैसे ही आप बैठे हैं, हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, दिमाग ऊपर। इस तकसीम पर जब आप नजर डालेंगे तो आपके दिल में इल्म की अजमत पैदा होगी। ध्यान से सुनिएगा, हाथ पांव से काम काज किया जाता है, ये सबसे नीचे है। हाथ पांव से काम काज होता है, इसको सबसे नीचे रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। मतलब क्या था? अगर आपके बच्चे के हाथ में इल्म और हुनर आ गया, अल्लाह जिल्लत की पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खिलाने में आगे, पढ़ाने में पीछे।
अब पता चल गया ना कि हाथ कहाँ उठना चाहिए। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ। आवाज बढ़ाओ यार, माइक वाले को बोलिए आवाज बढ़ाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में हाँ ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यार मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। बहुत रफ्तार के साथ आपको अपने जलसे से आगे बढ़ाते हुए जा रहा हूं। खाता खुल रहा है, बिस्मिल्लाह है। आगाज अच्छा होगा तो अंजाम बहुत अच्छा होगा। आपके घर में पुरानी चौकी होगी और पुरानी कुर्सी होगी, जब उसको आप हटाएंगे उससे छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा। चटाई है उसको हटाइए, बिच्छू निकलेगा। चौकी है उसको हटाइए, बिच्छू निकलेगा। कुर्सी है उसको हटाइए, बिच्छू निकलेगा। हैरत की बात यह है कि बिच्छू काटे या ना काटे, बच्चा उसको देखे जूते से मारता है, बूढ़ा उसको देखे जूते से मारता है। जानते हैं क्यों? गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जब बिच्छू बच्चा होता है माँ के पेट में होता है तो माँ उसको संभालती है, संभाल करके रखती है। जैसे ही वो बड़ा होता जाता है माँ उसको संभालती रहती है, लेकिन जब वो हद से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो माँ के पेट को फाड़ करके बाहर निकल जाता। जिसने माँ पर सितम ढाए उसके साथ दुनिया में कैसा सितम होता है। बच्चा भी देखे जूता मारे, बूढ़ा भी देखे जूता मारे। आज इस्राइल के साथ अल्लाह जूता मार रहा है। जो कल दूसरे को घर से बेघर करता था आज उसको अल्लाह ने बेघर कर दिया। जो दूसरे को जलाता था आज उसको अल्लाह ने आग के हवाले कर दिया। ये गेड़ाबाड़ी है, गेड़ाबाड़ी आप जाइए, आपको लोहार की दुकान पे जाना है जहां आप दबिया बनाते हैं, कचिया बनाते हैं। आप गौर कीजिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मजलूम की अल्लाह मदद करता है। देर है अंधेर नहीं है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। आप जाइए लोहार के यहाँ तो आप देखेंगे उसके यहाँ भट्ठी जल रही है, और जो भट्ठी बनी हुई होती है वो मरे हुए चमड़े की होती है, मरे हुए चमड़े की भांति है, बड़े हुए चमड़े की भट्ठी है। जब उसमें आग लगाई जाती है, लोहा जब उसमें डाला जाता है, लोहे जैसा फौलाद वो पिघल जाता है, गल जाता है। ये लोहा इतना ताकतवर भट्ठी में भाप से कैसे गल गया? जैसे भाप से लोहा गल जाता है, मजलूम की आह से जालिम गल जाया करता। जलसा जब खत्म होगा तो दुआ होगी। हाथ उठाइए, खत्म से पहले हम लोग चले जाएंगे। हाथ उठा दीजिए, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं कि आप लोग कहां लाइन पर आएंगे। दुआ होगी, जब दुआ होगी तो हमें मेहनत की मजदूरी मिलेगी। कुछ लोग यहां जलसा देखने के लिए आए हैं, चले जाएंगे, उनके लिए ये जलसा तमाशा होगा, कुछ नहीं होगा। उसकी आखिरत इससे नहीं बनेगी। जो जलसा सुनने वाले होंगे वो बैठेंगे, दुआ तक साथ देंगे। इस रात को अल्लाह उनके हक में इबादत लिख देगा। इंशाअल्लाह दुआ तक साथ देना है, हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह आप लोग घबराइए मत, साथ खून माफ है, दायां बायां होता रहेगा। अचानक मैं भी बैठूँ और अचानक सवाल हो मैं भी फंस जाऊँ।